Welcome again to the class of physics. So we are doing vectors. Till date we have done the addition of vectors. How can we add up the two vectors? What are the characteristics of the vector addition? Okay, some of the numericals already we have done. So today we are doing the opposite concept of addition, that is subtraction. Can we subtract the two vectors? The answer is yes. So the topic is subtraction of two vectors. Topic is subtraction of two or more vectors, it can be, but we are doing just subtraction of two vectors. Okay. Subtraction means it can be written as a minus b, isn't it? If we are writing the a plus b as addition of vectors, then a minus b is written as subtraction of vectors. Okay. Look at here. Can it be written as? Can it be modified as a plus to negative of b? Isn't it? It means a vector is added to negative vector of b. दैट इज ऑल्सो, इसको हम इस तरह भी से लिख सकते हैं, एक ही बात है, बाहर माइनस आएगा तो माइनस हो जाता है ब्रैकेट के बाहर आके वो. तो इट मीन्स हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को एडिशन की फॉर्म में बना लिया हमने मॉडिफाई करके. क्या बना वो कि अगर ए वेक्टर में आप बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर देते हो, ए वेक्टर में बी वेक्टर का क्या ऐड कर देते हो, नेगेटिव, यू विल गेट द रिजल्टेंट वेक्टर, यू विल गेट द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर. ओके, सपोज वी हैव a vector a, okay, again we have a vector b. What we have to do, if we have to do the resultant vector in addition, first of all मैं addition में बता रहा हूँ. if we have to do the addition of vector, then what it will be, जहाँ से vector addition में क्या होगा, a plus b, तो जहाँ से first vector की टेल है लास्ट वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, this will be the resultant vector of addition. is a plus b. जो भी मेथड बनेगा एंगल बीच में होगा वो गिवन होगा. बट इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट द वेक्टर, इफ यू वांट टू डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, देन वी हैव टू ऐड अप द नेगेटिव ऑफ b टू a. तो हमें सबसे पहले नेगेटिव ऑफ b वेक्टर बनाना पड़ेगा कि कहाँ नेगेटिव ऑफ b वेक्टर है. सो नेगेटिव ऑफ b बनाने के लिए क्या करना है, नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं टाइप ऑफ वेक्टर में, which have same magnitude but opposite in direction. It means b का अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो b की लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर का b से अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ कर दो, दैट विल बी इट्स नेगेटिव वेक्टर. सो अगर एक वेक्टर इससे अपोजिट डायरेक्शन में इतना ड्रॉ कर दो, दिस इज माइनस b, दिस इज द पॉइंट o सपोज, सो दिस इज o, दिस इज p, दिस इज q, दिस इज s. सो pq is p, then ps is minus b, because it has equal magnitude to b but opposite direction to b. So if you want to calculate, now we have two vectors a this and minus b this. So this will be the resultant of two vectors a and minus b, that is r2, this is r2, this is the resultant vector r2. So we are taking, if we are taking the resultant from first vector, tail of the first vector to the last vector of b vector, last hand, that is addition, और a और यहाँ पे माइनस b ले लिया तो ये रिजल्टेंट इनके सब्ट्रैक्शन का बनेगा. ओके, सो दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर इन द टर्म्स ऑफ एडिशन. हम सब्ट्रैक्शन को एडिशन की फॉर्म में भी कर सकते हैं. ओके, एज एडिशन हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर एडिशन, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन. ओके, एडिशन में जो वेक्टर है, वेक्टर का एडिशन, सॉरी, that is commutative. a plus b is equal to क्या होता है, b plus a. बट सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, a minus b is not equal to b minus a. सपोज करो आप 7 में से 3 माइनस कर रहे हो तो 4 आएगा, बट 3 में से 7 माइनस कर रहे हो तो -4 आएगा. सो इन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट फॉलोड. कम्यूटेटिव लॉ वैलिड नहीं है इन सब्ट्रैक्शन. एज वेल एज एसोसिएटिव अगर हम बात करें, नॉन एसोसिएटिव होता है, ये पहले b और c में से b में से c माइनस क्या हो रही है, माइनस करके उसमें से अगर a माइनस b करके फिर b c इसमें से माइनस करें
तो आंसर विल नॉट बी सेम. So subtraction of vector is not commutative as well as not associative. So these two are the important characteristics of a vector subtraction. Now after this subtraction of vector, our next topic is the most important one from the chapter vectors, that is resolution of a vector. Resolution of a vector. What is called a resolution of a vector? Okay, as till we have discussed the addition of vector. It means addition vector क्या था कि एक ऐसा सिंगल वेक्टर जो एक दो वेक्टर के बराबर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा हो, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज एडिशन वेक्टर. मतलब दो वेक्टर के बराबर एक अकेला वेक्टर, तीसरा वेक्टर है, वो दो के बराबर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज एडिशन वेक्टर. दो को मिलाकर आपने एक बना दिया. अब इसका उल्टा हो सकता है, रेजोल्यूशन का मतलब होता है टूटना. ओके, अब ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंगल वेक्टर कैन बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर वेक्टर्स. एडिशन में क्या था, टू और मोर वेक्टर्स कैन बी एडेड अप टू गिव अ सिंगल वेक्टर. Now we have resolution of vector. A single vector can be split up into two or more vectors. That is called resolution of vectors. Resolution of vectors. Okay. Suppose we have a vector A. First of all, vector R. Sorry. Resolution of vector. What is it? Splitting up of a single vector into two or more vectors. Splitting up of a single vector into two or more vectors, that is called resolution of a vector. That is called resolution of a vector. Now suppose we have a single vector, that is R. We have to split up into two or more components of this vector. So first we have done a vector A and done vector B. So we have splitted up the vector R into two components in different directions. अलग अलग डायरेक्शन में वो होंगे. It means आर अगर जितना अकेला इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, अब ये दोनों मिलकर उतना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं. डेफिनेशन उल्टी होगी एडिशन से. एडिशन में क्या था, सिंगल वेक्टर विच कैन प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज शोन बाय द टू वेक्टर्स टुगेदर. अब उल्टा हो गया, द टू वेक्टर्स दीज टू शोज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अ सिंगल वेक्टर. एक सिंगल वेक्टर के बराबर का ये दोनों इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे. सो दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन वेक्टर. एंड सिंगल वेक्टर को जिस वेक्टर में आपने तोड़ा, रिजोल्यूट किया, दे आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर. दे आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर. इट मींस कंपोनेंट कौन कौन से हुए, ए एंड बी. ए एंड बी. सो ए एंड बी आर टू कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर. सो दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर. रिजोल्यूशन का मतलब उसको टुकड़ों में तोड़ना. अब ये जो आर वेक्टर है, ये ए कंपोनेंट का काम क्या है, इस कंपोनेंट का काम है कि इस आर वेक्टर का इफेक्ट इस डायरेक्शन में शो करना है. कि इस आर वेक्टर का इस एक्स एक्सिस में क्या इफेक्ट रहेगा, उस डायरेक्शन में उसका इफेक्ट बताना ये वेक्टर का काम है. बी वेक्टर का क्या काम है, इस आर का इस बी वेक्टर के डायरेक्शन में क्या इफेक्ट शो होगा वो शो करना इस बी वेक्टर का काम है. ओके, मतलब एक वेक्टर का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या इफेक्ट है वो उसके कंपोनेंट शो करेंगे. वो क्या करेंगे, उसके कंपोनेंट्स शो करेंगे. सो दिस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर. नाउ वी आर डूइंग व्हाट इज rectangular components of a vector. What we are doing, rectangular components of a vector. I am writing like this. Rectangular components of a vector. एक वेक्टर के कंपोनेंट तो आपने कर दिया है, वो कब कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कहलाएंगे. ओके, सपोज वी हैव अ वेक्टर r.
we have to split up this vector into two components. If the two components are perpendicular to each other, if two components are perpendicular to each other, then they are called rectangular components. Suppose one component, that is a vector, is along x-axis, and one component, that is b, is along y-axis. One vector r, one component of r is along x-axis and one component of r is along y-axis. So x and y-axis are perpendicular to each other. So now we have two components of vector r. One component, मतलब ये है इसका हिस्सा ही, A component is along x-axis and B component is along y-axis. As we know, x and y-axis are perpendicular to each other, like this. Okay, you can look at here. ये होता है, अगर आप यहाँ देखना चाहो इसके अकॉर्डिंग तो ये बनेगा. तो ये तो हो गया x-axis, this is y-axis. तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर. So it means एक वेक्टर के दो कंपोनेंट हुए और वो दोनों कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर है. कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर है. ओके, कंपोनेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है. Then they are called rectangular component. Now A and B are rectangular component. If the two components of a vector are perpendicular to each other, then the components are called rectangular components of a vector. Rectangular components of a vector. ऐसा भी हो सकता है कि एक y एक्सिस में हो तो एक z में हो, y और z भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं. एक x में हो, एक z में हो, मतलब तीन एक्सिस जो हमारी होती हैं, उन्हीं किन्हीं दो के अलोंग आपके पास दो वेक्टर्स हैं. सो दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर. इन अ प्लेन बोलते हैं इसको, इन अ प्लेन. प्लेन का मतलब सिर्फ दो एक्सिस में, अगर यहाँ स्पेस हो जाता तो वो तीन एक्सिस में चला जाता है. ओके, सो दिस इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर. नाउ व्हाट वी हैव, सपोज वी हैव एंगल थीटा we have angle theta between resultant vector and vector A. Resultant vector and vector A के बीच का जो एंगल है that is angle theta. So two vectors we have. If we making a triangle like this, this is vector B, this is B, this height is equal to this and this is also B. Naming this O, P, Q, S. So PQ is equal to OS. PQ की वैल्यू भी B होगी, इसके बराबर है, ये बिल्कुल सामने. Now we have a triangle. We have a triangle. इस ट्रायंगल में आपको एक बार cos थीटा निकालना और एक बार sin थीटा निकालना है. cos थीटा क्या बनेगा? cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपो. P by H B. बेस बाय हाइपो. ओके, सो व्हाट इज बेस? एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये बेस है. सो बेस इज मैग्नीट्यूड लेंगे हम सिर्फ A. क्लियर? एंड व्हाट अबाउट हाइपो? हाइपो इज दिस OQ, मैग्नीट्यूड कितना है इसका R. सो व्हाट इज A कंपोनेंट? अगर आपको वेक्टर में लिखना है तो वेक्टर में दोनों के ऊपर लगाना पड़ेगा. A वेक्टर इज इक्वल टू R cos थीटा. इट मींस A वेक्टर जो है वो उसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो? R cos थीटा. R इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इनटू cos थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर. नाउ यू कैन कैलकुलेट, इसको हम वेक्टर की फॉर्म में नहीं मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं क्योंकि हम A वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं. वैसे लिखना तो लिख सकते हैं लेकिन एंड में जाके हमें मैग्नीट्यूड लेना ही पड़ेगा इसका. ओके, नाउ sin थीटा कैलकुलेट करो इसी ट्रायंगल से. sin थीटा क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर इज B. B और हाइपोटेन्यूज क्या है? R. B इज इक्वल टू R sin थीटा. B क्या बन गया? R sin थीटा. इट मींस ये A क्या बना? R cos थीटा और B कंपोनेंट को हम क्या लिख सकते हैं? R sin थीटा. ओके, so this is the rectangular components of a vector in a plane. Now as the two vectors, now we are taking the two components, okay, A and B, they are 90 degree to each other. So if we want to calculate the magnitude of resultant vector from the two given vectors,
मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा 90 and cos 90 is 0. So resultant will be magnitude of a cos square plus magnitude of b square under root. It means if two vectors are 90 degree to each other, it means they are rectangular components of a vector. The resultant vector magnitude can be calculated by squaring the magnitude plus adding them and square root उनका कर दीजिए तो आपके पास you will get the magnitude of resultant vector. And what about the direction? Direction का क्या था rule? That is b sin theta. Theta 90 हो गया divided by a plus b cos theta. Theta is again 90. Okay. So sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो it will be b by a. तो डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू b by a मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर. नाउ we are doing one numerical based on the resolution of vector. Okay, what is given? An aeroplane takes off at an angle of 30 degree to the horizontal. एक एरोप्लेन उड़ने लगा हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल ये हो गया 30 डिग्री, थीटा हो गया 30 डिग्री. ओके, इफ द कंपोनेंट्स ऑफ इस वेलोसिटी, तो इधर एरोप्लेन उड़ रहा है कितनी, ये v वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल, इस वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आप vx लिख सकते हो क्योंकि ये अलोंग x एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस बनती है. ये अपने को दे रखा है 200 किलोमीटर पर आवर. एंड व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी, आपको एक तो एक्चुअल वेलोसिटी निकालनी है एंड फाइंड आल्सो वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है v y भी आपको निकालना है. ये हॉरिजॉन्टल भी दिया हुआ अपने को v y, वर्टिकल कैलकुलेट करना है, एक्चुअल भी कैलकुलेट करना है. और अब हमें पता है कि ये दिया हुआ अपने को v x, अभी हमने क्या पढ़ा था, जो a कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो क्या होता है r cos थीटा. r इज रिजल्टेंट, यहाँ रिजल्टेंट v है, जो गिवन है वो रिजल्टेंट होता है ये v. सो a तो आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, a क्या बन गया हॉरिजॉन्टल वाला vx, और r टोटल वेलोसिटी होती है cos थीटा दिया हुआ 30 डिग्री, vx कितना दिया हुआ अपने को 200, दिस इज 200 v cos 30. cos 30 की वैल्यू अगर आपने रखनी है दैट इज sin 60. cos 30 क्या बनेगा, sin 60 root 3 by 2, 200 v into root 3 by 2, to इधर 400 by root 3, 400 by में root 3. You can put the values and solve them here. So it will be answer is 230.9 किलोमीटर पर आवर. एक्चुअल वेलोसिटी हमारे पास आ गई, नेट वेलोसिटी कितनी से एरोप्लेन ने टेक ऑफ किया था. नाउ अब हमने निकालनी है वर्टिकल वेलोसिटी. वर्टिकल वेलोसिटी इज v sin थीटा. यहाँ टोटल होता है, टोटल वेलोसिटी ये कंपोनेंट हो गया और sin थीटा जो एंगल है, v y हमने निकाली है, ये v अपने पास आ गया 230.9 और sin 30 डिग्री. sin 30 की वैल्यू दैट इज 1/2, so it will be 1/2. So answer will be 115.45 kilometer per hour. So it is vertical velocity, vertical components of velocity of aeroplane. Okay, horizontal is always in cos theta, total value total resultant into cos theta, vertical is total into sin theta. Another numerical based on the same, a force of 40 Newton makes an angle of 60 degree with the x axis. ये x axis होगी हमारी, एक फोर्स है 40 न्यूटन का फोर्स है, makes an angle of 60 degree with x axis, यहाँ 60 डिग्री. ओके, फाइंड दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट का फोर्स. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आपने निकाला, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा x f cos थीटा, और वर्टिकल क्या बनेगा f sin थीटा f y. ओके, fx इज f कितना है 40 cos 60, cos 60 is 1/2, so it will be 20 Newton.
Fy will be f sin theta, f is again 40, sin theta sin 60 डिग्री. ओके, थीटा यही लेना जो गिवन है, ये मत लेना जो गिवन है वही एंगल लेना होता है. sin 60 is √3/2. Okay, so it will be 220, so it will be 20 √3. So Fy vertical component is 20 √3 and horizontal component is 20 Newton. So this was the two numerical based on resolution of a vector in a plane. अभी तक हमने एक plane में किया, it means only along two axes. So this was all about the today's session. So thanks and have a nice day.